Saurabh, Riya, Aslam, very good morning. Uh, in this live session, I welcome all the students once again. Today, we will start our new topic that is Robinson Crew. And in the last session, I have given you the PDF of Robinson Crew. I hope you all have read that PDF and all have read that chapter and find out the difficult word and learn the spelling of those difficult words. And one more thing which would like to tell you, all of you, please don't unmute your speakers in your this live session. आप पूरी क्लास में इस पूरे 1 घंटे में अपना स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे. Whatever the queries you want to ask, you can ask me in the chat section. I repeat the same thing again. Nobody will unmute their speakers until or unless you have to ask anything. You can ask me in the chat section. So I think we should start the class because it is very lengthy chapter. So we have to finish this chapter right now today. So here is our chapter. So here we start our Robinson Crew chapter. This is the chapter of Robinson Crew. Before we will start this chapter, I want to tell you something, but this is very important that you may not know who is Robinson Crusoe. So before I will start this chapter, I want to tell you who was Robinson Crusoe. Robinson Crusoe was a man who lost his boat while he was traveling in the sea, and he was landed on the one island, and he lost his way. He also lost his boat, so he was unable to go back to his home. So that's why he live on his island for 28 years. रॉबिन्सन क्रू एक उस व्यक्ति का नाम है, एक वो ही वाज अ मैन जो अपने घर से एक बार ट्रैवलिंग के लिए निकला था, घूमने के लिए निकला था. लेकिन हुआ क्या, रॉबिन्सन क्रू जब अब जहाज में निकला तो वो रास्ता भूल गया और एक ऐसी आइलैंड पे जाकर पहुंचा जहां पर उसका एक तो बोट टूट गई. अब उस आइलैंड से वापस जाने का उसके पास कोई और सहारा नहीं था, बोट टूट चुकी थी क्योंकि उसकी. तो वो दिस इज द रियल स्टोरी. और वो जो रॉबिन्सन क्रू था वो 28 साल 28 इयर्स वो एक आइलैंड पे रहा और उस आइलैंड पे रहकर उसने बहुत सारी चीजों की देखा, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया. और उसी पे बेस्ड जब वो 28 इयर्स बाद लौटा, उसी की स्टोरी को लेकर किसी और व्यक्ति ने, उसके जो इसका राइटर है उसने उसकी स्टोरी सुनी और उसे इस बुक में छाप दिया. सो ये कहानी है एक रॉबिन्सन क्रूसो की जो अपना रास्ता भूल गया था, उसकी बोट टूट गई थी. वो जहाज में मतलब अब ट्रेवल जब कर रहा था, बोट टूट गई एक बिल्कुल ही अननोन आइलैंड पे जाकर, जहां कोई भी नहीं रहता था उसके अलावा. वो अकेला 28 साल तक उस आइलैंड पे रहा और अकेला ही वहां से फ्रूट तोड़कर, वहां से जो वेजिटेबल्स, यहाँ बैम्बू शूट होते थे या नारियल का पानी पीकर, वो सब पीकर उसने अपना 28 इयर्स गुजारा किया. और 28 इयर्स के बाद वो अपने घर वापस लौट गया. उसकी कहानी किसी ने सुनी और उसे एक कहानी के रूप में हमारी बुक में छाप दिया. तो यहाँ तक रॉबिन्सन क्रूसो का बैकग्राउंड सबको समझ में आया? पहले मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे. विनीत कह रहा है कि मैम उसका जहाज डूब गया था तो वो एक आइलैंड में कई साल अकेला रहा था. हाँ, वही मैं कह रही हूँ बेटा कि वो 28 साल तक अकेला रहा एक बिल्कुल ही अननोन आइलैंड पे जिसका उसको नाम भी नहीं पता था.
ओके चलिए शुरू करते हैं बच्चे ये चैप्टर, इतनी बात आपको समझ में आई। सो ही इज द रॉबिन्सन क्रूसो। नाउ यू कैन सी ही आल्सो लिव्स लाइक अ, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, ट्राइबल्स लोग रहते हैं, देखिए। ही इज वेयरिंग द लीव्स, he doesn't have clothes to wear. Leaving his hair has increased because there was no barber who can cut his hair. His beard is also has increased because there was no barber to clean his shave. He is living, he doesn't have good clothes to wear. He was using leaves to wear because he has lived there for 28 years, and this is not a short period of time. So he almost, what we can think, he almost lost his clothes. Maybe his clothes has tear up, or he doesn't have good clothes to wear. He doesn't have scissors to while which he can cut his hair. He doesn't have his razor and brush by which he can clean his shave. So he was using the surrounding things and make it more useful by using on his body. Now he is wearing few leaves by which he can cover his body. So we should start this chapter. Now the chapter name is Robinson Crusoe discovers a footprint. Now before we will start this chapter, tell me the meaning of foot discovers. Tell me what do you mean by discover? You can tell me in the chat section. तब तक आविष्कार, very good. What else? To find something. Okay, beneath. Invent, Deepika Sinha, very good. To find, Anudri Saha. Explore, Prantik, good. To find out something new, invent, Avishkar, invent, finding, good. To find. Yes, discover means to find out something new. डिस्कवरी चैनल तो सभी ने देखा होगा। डिस्कवरी मीन्स कुछ खोजना, कुछ खोज कर कुछ नई चीज बना देना। सो डिस्कवर मीन्स कुछ नई चीज खोज कर कुछ नया बना देना या कोई नई चीज खोज निकालना। ठीक है। नाउ हेयर इज अ फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट मीन्स फुट और उसका प्रिंट। फुट मीन्स पैर और उसका प्रिंट, पैर की छाप या मार्क ऑफ द फ्रूट, sorry, mark of the foot. And what else we can use at the place of footprint? It can be used mark of the print, mark of the foot, or footprints. So shall we start this chapter? Now Robinson Crusoe, I have already told you that Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. वो समुद्र में जा रहा था अपना जहाज लेके और उसका जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया। Now tell me the meaning of destroy. Fast चलेंगे बच्चे, चैप्टर बहुत लेंदी है तो we have to finish this chapter today. Destroy. Tell me the meaning of destroy. Kill, finish, tear down, broke, find out. Okay, damage. Good. Yes. To kill or to damage. ये हमने लास्ट चैप्टर में डैमेज किए, डिस्ट्रॉय वर्ड कर चुके हैं। तो डिस्ट्रॉय मीन्स उस चीज को, वो रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, टूट गया था। किससे टूट गया था? सी में जो लंबी लंबी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें, उनकी वजह से जो उसका शिप था रॉबिन्सन क्रूसो का वो टूट गया था, एकदम बर्बाद हो गया था। He had been alone for many years and long. वो कई सालों तक अकेला रहा उस आइलैंड पे। और लॉन्ग मीन्स उसको डिजायर थी, इच्छा थी उसको। न्यू वर्ड्स को अभी लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ चैप्टर में समझा रही हूँ, बाकी हम न्यू वर्ड्स अलग से करेंगे, तो जस्ट समझ लीजिए अभी, ठीक है। उतारना किसी को कुछ नहीं है। सो ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी इयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको, वो बहुत सालों तक अकेला रहा उस आइलैंड पे, लेकिन उसके मन में इच्छा थी, उसके मन में एक ऐसा था कि उसको कोई कंपनी मिल जाए। कंपनी मीन्स कोई फैक्ट्री नहीं, कंपनी मीन्स कोई दोस्त की कंपनी, कोई फ्रेंड उसे मिल जाए उस जगह पर रहने के लिए। वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड।
एक दिन उसने क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा, क्या नोटिस किया कि सैंड पर, मिट्टी पर, वहां पर रेत पर क्या निशान है, फुटप्रिंट के निशान है। अब उसे क्या दिखाई दिया कि एक सैंड पर वहां पर पास में, वहां पर कुछ पैरों के निशान उसे मिले। अब वो सोचने लगा ये पैरों के निशान किसके हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। और उसके बाद जब उसने पैरों के निशान देखे तो उसने क्या किया, चलिए देखते हैं। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, एक दिन की बात है जब मैं जा रहा था अपनी बोट के पास। उसका शिप टूट चुका है, अब उसने एक छोटी सी खुद बोट बनाई है शायद। आई वॉज सरप्राइज टू सी द, मैं सभी बच्चों से बोलूंगी जब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे, चैट सेक्शन में कोई टाइप नहीं करेगा उस ड्यूरेशन में। जब मैं पूछूंगी आप तभी करेंगे और तब तक सुनेंगे, ठीक है बच्चे? जब मैं पूछूंगी तभी चैट सेक्शन में बात करेंगे। चलिए। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, एक दिन की बात है मैं अपनी बोट के पास जा रहा था, मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू प्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, और मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया, मैं एकदम शॉक हो गया कि मैंने देखा वहां पर एक आदमी के रेत पर फुटप्रिंट के निशान है, पैरों के मार्क्स के निशान है। आई स्टूड अमेज्ड, मैं एकदम अमेज्ड हो गया। अमेज्ड, नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ अमेज्ड। वो अमेज्ड हो गया। नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ अमेज्ड, वी हैव डन लॉट्स ऑफ टाइम दिस वर्ड। टेल मी द मीनिंग ऑफ अमेज्ड। The surprise, surprise, amazing, surprise. Okay, wondered, very good. Surprise. Yes, the meaning of amaze is surprise. So जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो एकदम शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने सुनने की कोशिश की, मैंने सुना, मैंने देखा अपने आसपास। आई कुड नीदर हियर नॉट सी एनीथिंग, ना मैं कुछ आसपास देख पा रहा था, ना मुझे कुछ आसपास दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊंचाई पर गया ताकि मैं नीचे का सारा व्यू देख पाऊं। और मैं ऊंचाई पर चढ़ गया और मैंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं ऊंचाई पर चढ़कर देखने लगा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे के तट के ऊपर चला गया, उससे नीचे भी आकर मैंने देखा, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वहां पर देखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट दैट वन, मैंने और कोई फुटप्रिंट्स के निशान नहीं देखे उसके अलावा, बस वो एक फुटप्रिंट के निशान ही मुझे दिखाई दिए। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल, आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, मैं आसपास देखने लगा, दोबारा देखने लगा कि उस पैर के निशान के अलावा क्या वहां पर और भी पैरों के निशान थे, क्या वहां पर कोई और भी फुटप्रिंट्स के निशान थे। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैं यह सोचने लगा कि ये सिर्फ मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन सिर्फ सोच है, कोई थिंकिंग है, या एक्चुअली में वहां पर कोई फुटप्रिंट्स के निशान भी हैं। अब रॉबिन्सन क्रूसो को क्या हुआ कि उसने देखा कि आसपास उसे एक जो रेत है वहां पर एक पैर का निशान दिखाई दिया, और वो शॉक्ड हो गया, ये पैर का निशान किसका है, इतने सालों से तो मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। ये वो जाकर जगह जगह देखने लगा, पहले वो ऊंचाई पर गया ताकि वो नीचे देख सके कि कोई है तो नहीं कि जिसके पैर का निशान है, उसे कोई नहीं दिखाई दिया, उसे कोई सुनाई भी नहीं दे रहा था आसपास। और उसने क्या किया, शोर पर चला गया, वो शोर होता है जो समुद्र होता है उसका किनारा, तट, जो बाउंड्री होती है समुद्र की, तो उस पर जाके उसने देखा, ऊपर चढ़कर देखा उस पत्थरों के, उस पत्थरों से नीचे उतर के देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे कुछ भी कोई और निशान वहां पर उस पैरों के अलावा नहीं दिख रहा था। तो वो सोचने लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन है या एक्चुअली में ये किसी और के पैर का निशान है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने गलती नहीं की थी, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मैं गलती नहीं कर रहा था, ये पक्का किसी के पैरों के निशान थे, क्योंकि उस पैरों के निशान में वहां पर उसकी उंगलियों के निशान थे, उसकी हील, हील मतलब एड़ी, टोज पैरों, जैसे हाथों की उंगली को हम फिंगर्स कहते हैं वैसे पैरों की उंगली को हम टोज कहते हैं।
तो मैंने गलती नहीं की थी, क्योंकि वहां पर किसी के पैरों का निशान तो था, क्योंकि वहां पर पैरों की उंगलियों के निशान थे, फिर वहां पर किसी की एड़ी के भी निशान थे उसी में। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, फुट के पूरे पैर के निशान थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हियर देयर। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ये पैरों के निशान वहां पर आए तो आए कैसे। आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, वो एकदम सरप्राइज है, अभी बिल्कुल ही शॉक्ड है कि ये आए कहाँ से आखिर। आई स्टेयर्ड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक बैठकर वहां पर सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था भाई ये किसके पैरों के निशान है। तो वो समय के साथ सोचते सोचते बैठकर उसने सोचा काफी देर कि किसके निशान हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते, मेरे तो नहीं है, किसी और के हैं कि नहीं। मैम मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साउंड नहीं आ रहा। मैम साउंड इज नॉट क्लियर, रिया साउंड इज नॉट क्लियर। साउंड इज हाउ कुड नॉट बी क्लियर, बच्चे वेट करेंगे। बाकी बच्चों को ठीक से साउंड आ रहा है या कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम है? बाकियों को ठीक आ रहा है, पहले मुझे सही बताएंगे। मैम आई कैन हियर यू, ओके यस मैम यस। बच्चे जो ये 3 बच्चों ने बोला है साउंड का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो बच्चे। तो आप ऐसा कीजिए, बात। नो मैम साउंड इज क्लियर, ओके साउंड इज क्लियर। मैम आई कैन हियर यू, ओके। बच्चे तो प्रॉब्लम जो हो रही है, जो 4 बच्चों ने बोला कि साउंड की प्रॉब्लम, हो सकता है वहाँ नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग फाइन। चलिए एक बार आप बच्चे, जिन बच्चों को साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, आप वापस एग्जिट करके दोबारा आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अनुराग, मैंने वही कहा है कि कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है साउंड की, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, ठीक है। तो आप एक बार एग्जिट करके दोबारा आएंगे। तो जो अभी तक रॉबिन्सन क्रूसो था, हमने उसके बारे में पढ़ा कि वो उसको एक पैरों के निशान दिखाई दिए। अब वो पैरों के निशान से इतना शॉक्ड हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया, वो जगह जगह जाकर देख रहा है कि कहीं और तो नहीं है इसके पैरों के निशान। अब चैट सेक्शन बच्चे बंद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो वो पैरों के निशान से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया देखकर रॉबिन्सन क्रूसो, और वो क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कि उसे पता ही नहीं है किसके पैरों के निशान है। वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, उसे सुनाई भी नहीं दे रहा कि कोई आसपास मेरे है कि नहीं। कुछ देखने की कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़कर बहुत ऊंचाई पर, कि नीचे मुझे दिख जाए कि कोई छुपा हुआ है, कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो वो भी उसको कोई और इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, किनारे पर जा जाकर देख रहा है, ऊपर चढ़कर नीचे चढ़कर। तो वो भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट वो फुटप्रिंट्स के निशान ही। सब बच्चे चैट सेक्शन में एक चैटिंग बंद करेंगे बच्चे। आई गॉट टू नो आपको साउंड आ रहा है या नहीं, प्लीज अब चैट सेक्शन में बंद करेंगे बच्चे। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो जस्ट खोजने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये पैरों के निशान है किसके। अब वो बैठ गया है और सिर्फ सोच रहा है कि किसके पैरों के ये निशान है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, या एक्चुअली में वहां किसी के पैरों के निशान है। लेकिन उसने बोला कि मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर किसी के टोज भी हैं, किसी की हील भी है, मतलब हील मतलब वो नहीं स्लीपर की हील, हमारी एड़ी को हील। तो हमारे किसी की जो टोज है उसका भी निशान है, हील का भी निशान है, पूरे फुट का निशान है। तो पक्का यहाँ कोई ना कोई तो आया था, या कोई ना कोई है यहाँ पर। तो वो बैठकर सोच रहा है, लेकिन उसे वो समय जैसे बीतता जा रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। इतना चैप्टर अभी तक क्लियर है सबको? प्लीज मुझे चैट सेक्शन में बताए बच्चे। ओके यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। At last, I returned home very frightened. Now tell me the meaning of frightened. Tell me the meaning of frightened. We have done this word lots of time. You must have known. Tamanna Chaudhary, fear, afraid, Prantik, Pradipta, Mayank, scared. Very good, बच्चे, very good. Afraid, fear, scared. Yes, correct. So, नीलाद्री स्कैड, वेरी गुड बच्चे। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो एंड में एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन, वो अपने घर वापस जा रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। ही वॉज फुल ऑफ फियर।
ही वॉज अफ्रेड। वो क्या कर रहा है, वो डरते डरते, ही वॉज लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps। वो 2-3 कदम आगे रख रहा है लेकिन मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और हम जो जितनी भी आसपास पेड़ हैं लंबे लंबे या बुशेस हैं, उसको वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है, वो क्या गलती कर रहा है कि वो ये सोच रहा है कि कहीं ये कोई इंसान तो नहीं। जब वो आगे बढ़ रहा है, वो डरते डरते आगे जा रहा है अपने घर के, वो सोचता है चलो अब मैं इसको ज्यादा सोचता नहीं हूँ, और मैं क्या करता हूँ अपने घर वापस जाता हूँ। वो अपने घर वापस जाता है और वो बोलता है कि वो 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर भी वो देखता है। बच्चे, जो बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं ना, ये मैं फिर से सभी बच्चों को बोलूंगी अपना स्पीकर कोई भी अनम्यूट ना करे। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो डरते हुए अपने घर की ओर जा रहा है, लेकिन वो बार बार 2-3 कदम आगे रखता है और बार बार मुड़कर पीछे देखता है। उसे डर लग रहा है कि ये जो पेड़ है या ये बुशेस हैं, कहीं ये कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं है। तो उसे इतना डर लग रहा है कि वो इमेजिन कर रहा है कि ये पेड़ और ये बुशेस कोई इंसान है। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी केव में, केव मतलब गुफा में, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, विच आई कॉल्ड माई कास्टल। कास्टल क्या होता है? महल। जो वो केव में रहता है, उस केव को वो अपना महल समझता है, जिस केव में वो रहता है। तो उस केव में अब वो लौटकर वापस आ गया है। अब क्या हुआ आगे देखेंगे। आई रेन इनसाइड इट। मैं उसके अंदर भागकर अंदर आ गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। उसे लग रहा है उसका कोई चेज कर रहा है उसको। चेज मीन्स कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता कि मैं यहां तक भागते भागते कैसे आया। क्या मैंने किसी लैडर का यूज किया था, किसी सीढ़ी का यूज किया था, या मैं किसी होल में से, किसी छेद में से वहां से आकर एक रॉक के में से आगे आकर बढ़ा। मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ है, वो जस्ट भाग रहा है अपनी। उसे लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वो जिस बस डर की वजह से सिर्फ भाग रहा है। उसे लग रहा है उसका कोई पीछा कर रहा है पक्का, जो ये पेड़ है वो कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई मैन है। और जो बुशेस हैं वो भी उसे मैन जैसी इमेजिनेशन हो रही है। तो वो भागकर अपनी केव में आया, जिसे वो महल समझता है रहने के लिए। वो उसे याद भी नहीं, वो इतना भाग रहा है, इतना डर रहा है कि वो एक लैडर के द्वारा अपने घर में पहुंचा या किसी रॉक के छेद के अंदर से घुसकर पहुंचा। उसे ये भी याद नहीं है, वो इतना डरा हुआ है। वो जस्ट भाग रहा है, और अब वो अपनी केव में जाकर पहुंचकर अंदर जल्दी से घुस गया। विच आई कॉल द डोर। अब वो एक रॉक के छेद में से घुसकर अपने घर में पहुंच गया है, और जिसे वो क्या कहता है, रॉक के छेद को दरवाजा। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कोई एनिमल भागता है उससे भी तेज मैं अपने आप को भगा रहा था। मैं उससे भी तेज भाग रहा था कि कोई एनिमल भाग सकता है, उससे भी तेज मैं अपने आप को भागकर अपने घर में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हुआ, वो बेचारा इतना डर गया है, उसे जस्ट इमेजिनेशन हो रही है। तो वो भागकर अपने घर में, समहाउ वो अपने घर के अंदर बैठा है अब, और वो इतना डरा हुआ है कि आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा। उसे याद भी नहीं है वो लैडर के द्वारा अपने घर में आया या किसी होल से अपने घर में पहुंच गया। बस वो डरा हुआ है और भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अब वो अपने घर में आकर बैठ गया है, और उसने अपने जो केव का दरवाजा मतलब दरवाजा नहीं है, होल है, उस पर एक पत्थर टिका दिया है, जिससे वो, जिस पत्थर को वो दरवाजा कहता है। तो अब वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात सो ही नहीं पाया। अब सोचिए, कोई इतना डरेगा तो सो कैसे पाएगा। द मोर आई थॉट अबाउट वट हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। जितना मैं उस बारे में सोचता हूँ, उतना ही मैं डरता जाता हूँ। उस रात वो बिल्कुल सो ही नहीं पाया।
वो सिर्फ इतना ज्यादा सोच रहा है उस बारे में कि उसने अपनी जो डर को है अपने दिमाग पर हावी कर लिया। हावी करना आप लोग समझते हैं, हावी करना होता है किसी चीज को अपने ऊपर कंट्रोल कर देना। उसके ऊपर अब डर इतना ज्यादा हावी हो चुका है, इतना ज्यादा उसका डर चुका है वो, कि वो ज्यादा उसके बारे में सोचे जा रहा है। और जितना ज्यादा वो सोच रहा है उतना ज्यादा वो और डरता जा रहा है। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब क्या हो रहा है? I thought it could be one of the savages. अब उसे लग रहा है कि, मुझे लगता है कि वो कोई जंगली कोई जानवर तो नहीं है जो जो मेन लैंड पे रहते हैं, हु हैड बीन वंडर आउट ऑफ द सी इन अ स्मॉल बोट। अब उसे लग रहा है कि कोई जंगली कोई आदमी कोई आदिवासी तो नहीं है जो यहाँ रहते हैं, कि वो जो स्मॉल बोट थी उसमें आया हो, समुद्र में से आया हो, घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता। हो सकता है कि कोई जंगली इंसान जो जो ट्राइबल है, या कोई बहुत ही जो पहले के लोग होते थे जो बिना कपड़ों के घूमते थे, कोई स्मॉल बोट में बैठकर तो नहीं आया समुद्र में। ये उसके दिमाग में चल रहा है, वो डरा हुआ है और मतलब ऊट पटांग चीजें वो सोच रहा है क्योंकि डरा हुआ है। लकली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। वो सोच रहा है कितनी खुशी की बात है, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि जब वो जो व्यक्ति है, जो ट्राइबल है, या जो पहले के लोग होते थे आदिवासी टाइप के लोग, वो इस बोट पर जब आए, तो मैं कितना खुशनसीब हूँ या मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं उस टाइम उस किनारे या उस तट पर नहीं था। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट। अरे ये क्या हुआ? लेकिन अगर क्या हो, मेरी बोट को अगर उन्होंने देख लिया हो, उन्हें लगा हो यहाँ पर कोई रहता है। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा, उस व्यक्ति ने मेरी बोट को देख लिया होगा, तो उसे लगेगा कि पक्का यहाँ कोई व्यक्ति रहता है। क्योंकि बोट अगर दिख रही है तो उसे तो पक्का लगेगा कि मेरी यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। और हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों को लेकर आए, वापस लौट कर आए, मुझे मारे, मुझे खा जाए। तो वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, वही पूरी कहानी में यही बता रहा है कि वो इतना डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है तो आदिवासी टाइप का है, पहले जो लोग होते थे जो इंसानों को भी खा जाते थे, उसे लग रहा है कि पहले के टाइम का कोई व्यक्ति तो नहीं है जो मुझे खा जाए या मुझे पकड़कर ले जाए अपने साथ। उन्होंने अगर मेरी बोट को देख, तो पक्का वो मेरी बोट को देखकर ये समझेंगे कि यहाँ पर कोई आदमी रहता है, कोई इंसान रहता है। अगर उन्होंने पता चल गया कोई आदमी इंसान रहता है, तो वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे खा लेंगे, मुझे ले जाएंगे अपने साथ। तो वो इतना डरा हुआ है कि वो मतलब अपने दिमाग की इमेजिनेशन को दौड़ा रहा है, और उसे लग रहा है कि पक्का उसे कोई मार डालेगा, उसे कुछ खा जाएगा, उसे पकड़ के ले जाएगा। तो वो बहुत ही परेशान है, एक्चुअली वो सिर्फ डरा हुआ है। तो डरते हुए व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ ऊट पटांग चीजें दिमाग में इमेजिन करता है जो होती भी नहीं है। उससे फिर ट्री में भी आदमी दिखाई दे रहे हैं, बुशेस में भी उसे लग रहा है कोई इसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि बुशेस हिल रही है तो पक्का कोई व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, मेरा फॉलो कर रहा है, मुझे चेज कर रहा है। वो भाग भाग कर अपने घर में बैठा है। अब घर में बैठे बैठे भी अंदर गुफा के अंदर बैठा है, अपने दरवाजा और पत्थर लगा रखा है अपनी गुफा के बाहर। फिर भी उसे लग रहा है कि पक्का अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी, वो तो अच्छी बात है कि बोट जब जब वो लोग आए होंगे तो मैं वहां नहीं था किनारे पर। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उन्हें लगेगा कि पक्का यहाँ इंसान रहता है कोई। अब उन्हें लग गया पक्का इंसान रहता है, तो पक्का वो मुझे यहाँ पकड़ने आ जाएंगे, मुझे साथ ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे खा जाएंगे। तो ये सब उसके दिमाग की क्या है, मुझे जरा चैट सेक्शन में बताएंगे ये सब उसके दिमाग की क्या है, क्यों वो ऐसी ऐसी चीजें को सोच रहा है, क्या है उसकी दिमाग की। विनीत, वेरी गुड इमेजिनेशन, वेरी गुड तमन्ना। यस, ऐसा एक्चुअली में नहीं है, बट क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है तो वो ऊट पटंग चीजें सोच रहा है। ये सब उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। जैसे माई शेडो में
पोएट की इमेजिनेशन शैडो से थी कि वो खेल रही है मेरे से पहले जाकर कूद गई है, और वो मेरे से पहले पहले आगे चलती है, कभी मेरे साथ चलती है, कभी मेरे आगे निकल जाती है, कभी मेरे पीछे होती है। तो यही इमेजिनेशन रॉबिन्सन क्रूसो की है। वो इतना डरा हुआ है कि वो चीजें सिर्फ इमेजिन कर रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बट वो इमेजिन कर रहा है। इतना चैप्टर अभी तक क्लियर है सभी को? मुझे चैट सेक्शन में बताए बच्चे, तो हम आगे बढ़ते हैं। नो ओके। मैम, मैं अभी अभी आया हूँ। मैंने आपको बेटा सबको पहले कहा हुआ है। कौन बच्चा है पहले अपने नाम से बताया बेटा मुझे, नाम बताए अपना चैट सेक्शन में मुझे। कौन बच्चा अभी अभी आया है? मृण्मय। मृण्मय है? तो बेटा क्लास तो आपको पता है 9:30 पे शुरू होती है। नो मैम। पहले अपना चैट कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। जिस बच्चे ने भी बोला है कि मैं अभी अभी आया हूँ, वो अपना नाम बताए कि मैंने अभी बोला है मैम मैं लेट आया हूँ। पक्का मुझे बताइए जल्दी से बेटा, क्लास का टाइम मत वेस्ट कीजिए। किस बच्चे ने अभी अभी बोला है कि मैं अभी आया हूँ? ओके, नई नाम बता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी अभी आए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लास 9:30 पे शुरू होती है बेटा, 10:05 पर नहीं। तो जब सेशन शुरू होता है, यू शुड अटेंड द सेशन ऑन द राइट टाइम। आई विल रिपीट दिस चैप्टर एट द एंड ऑफ द सेशन, बट अभी जो बच्चों को कोई क्वेरी मैम है तो वो मैम मैं देवप्रिय हूँ। देवो प्रियो। अपना स्पीकर बेटा पहले अनम्यूट करो बच्चे। और मैं सभी बच्चों को बोलने वाली हूँ कि 30 पे शुरू होता है बेटा। आप 10 बजे आकर बोलेंगे कि मुझे 9:30 बजे वो पढ़ाया हुआ रिपीट कर दीजिए, वो मैं नहीं करूंगी, उसके लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। जो बच्चे अभी लाइव है उनको मैं उनसे पूछ रही हूँ, क्या उनको कोई अभी तक चैप्टर में ऐसी बात है जो नहीं आई हो? दोपहर मैम मैं अभी ट्यूशन से आया हूँ। बेटा ट्यूशन से आए हो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं इसकी, ठीक है? चलिए, उन बच्चों को कोई दिक्कत है जो लाइव सेशन में अभी तक थे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके। तो रॉबिन्सन क्रूसो है, वो अभी तक बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि कोई आएगा और मुझे खा लेगा। चलिए, एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रे फॉर प्रोटेक्शन। अब वो उसने क्या किया? अब वो अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकल रहा, वो अपनी गुफा में ही लेटा हुआ है, डरा हुआ है, और बहुत दिनों तक सिर्फ क्या करता रहा? प्रे करता रहा गॉड से कि भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। वो इतना डरा हुआ है कि काफी दिनों तक वो अपनी उस केव से बाहर नहीं निकला। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब उसे इतने दिन हो गए अंदर बैठे बैठे, अब उसका डर है वो कम हुआ है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा। अब बाहर नहीं जा रहा तो उसका जो डर है वो थोड़ा अ, कम हो गया है, और वो कंफर्टेबल हो गया है कि पक्का हो सकता है कोई बाहर हो। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि मैं बाहर निकलकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, थोड़ी इन्वेस्टिगेट करूंगा, चीजों को जांच पड़ताल करूंगा, थोड़ी सर्च करूंगा कि क्या है ये पैरों के निशान। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली। लेकिन अभी भी क्या, पहले से उसका डर कम हुआ है लेकिन अभी भी वो थोड़ा डरा हुआ है। जब वो अपनी गुफा से बाहर निकला, तो अपनी गुफा से बाहर निकलने के बाद उसने क्या किया? वो अभी भी मुड़कर पीछे देख रहा है। आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटनेड, और वो अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ है। बेटा वर्ड मीनिंग में नेक्स्ट में कराऊंगी अनुद्रित, यू हैव टू कीप योर पेशेंस, ओके? तो मैं बता दूंगी, मेन लैंड होता है बेटा जो मेन, जहाँ मेन मीन्स इंपॉर्टेंट और लैंड मीन्स रहने वाली जगह। तो मेन लैंड जो होता है, रहने की जो जगह होती है। एक मिनट रुकिए बच्चे। हम्म। जो मेन लैंड होता है, जो रहने की जगह होती है, जहाँ आदिवासी लोग रहते थे पहले के पुराने समय में, जो लोग रहते थे उसको मेन लैंड कहते हैं।
मेन मतलब इम्पोर्टेंट, लैंड मतलब भूमि, कोई भी इम्पोर्टेंट भूमि जिसपे पुराने लोग रहते थे, तो उसी को कहते हैं मेन लैंड। तो जो वो अभी भी मुझे जरा बच्चे 1 मिनट देंगे, मैं थोड़ा पानी पीऊंगी, माई थ्रॉट हैज बिकम सो। 2 मिनट का मुझे ब्रेक देंगे बस। तो मैं कह रही थी कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है, अब वो थोड़ा उस डर से, बेटा चैट सेक्शन बंद करेंगे, स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, स्मिता, स्नेहा, रिया, दीपिका सिन्हा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में अब कोई बात नहीं करेगा। कोहली कोई बात नहीं करेगा। गर्ल्स स्पेशली यू आर रिक्वेस्टेड डोंट टॉक इन द चैट सेक्शन until and unless I will not ask you any question, okay, and don't write okay now, okay। तो what I was saying, रॉबिन्सन क्रूसो ने अब थोड़ा वो डर से क्या हो गया है, हम किसी चीज के यूज टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लेते हैं। जब रॉबिन्सन क्रूसो इतने दिन अपने घर में बंद रहा उस गुफा में, अब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि डर तो है उसे अभी भी। मेड मॉय स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन बच्चे। सो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो उस डर से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, और अब उसने सोचा कि मैं बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेट करूंगा कि ये कौन है जो बाहर, जिसके फुटप्रिंट्स के निशान है, और मैं खुद इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाऊंगा कि ये पैरों के निशान आखिर है किसके। तो अब वो बाहर निकला है, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है, क्योंकि थोड़ा डर तो उसके मन में है अभी भी वो हर कदम पर पीछे मुड़कर, तो ना स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन, तो अभी भी वो पीछे मुड़कर चलकर देख रहा है कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अभी भी उसको डर है उसके मन में, लेकिन पहले से उसका डर कम हो गया है। तो अब वो बाहर निकलकर उसने इन्वेस्टिगेशन करने की सोची है, लेकिन अभी भी वो डरा हुआ। However, as I went about 4 to 2 or 3 days and saw nothing, अब उसे क्या हुआ है, वो 2-3 दिन तक बाहर निकला, उसने चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। I became a little bolder, अब वो थोड़ा बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब थोड़ा करेजियस हो गया, थोड़ा साहसी हो गया। अब उसे उतना डर नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से वो आ, देख रहा है अपने आसपास और सर्च कर रहा है कि कोई है कि नहीं मेरे आसपास, और उसे कुछ भी नहीं मिला। तो वो बोल्ड हो गया कि हो सकता है ये कोई ऐसे ही पैरों के निशान हो। तो उसका जो डर है वो थोड़ा कम हुआ है, और वो थोड़ा साहसी बन गया है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने सोचा कि मैं उस किनारे से नीचे वापस दोबारा जाऊंगा और एग्जामिन करूंगा, चेक करूंगा कि वो फुटप्रिंट्स के निशानों को एक बार फिर से एग्जामिन करके, चेक करके, जांच पड़ताल करके उस तट पर, किनारे पर दोबारा जाकर उसको अच्छे से देखूंगा। आई डिसाइडेड टू ऑन फुटमार्क। अब उसने सोचा कि मैं अपने पैर के निशान को माप कर, मेजर कर कर देखूंगा, कहीं वो मेरे पैरों के निशान तो नहीं थे, कि कहीं वो मेरे पैरों के निशान कभी मैं गया हूं वहां पर और वही निशान वहां पर आ गए हो सकता है। तो वो दोबारा वहां पर गया और जांच पड़ताल वहां पर करने लगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने लगा, उस जगह को एग्जामिन करने लगा और उस पैरों के निशान को मेजर करने लगा अपने पैरों के निशान से। तो एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट्स के पास आया, मैंने देखा, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहा है कि मैंने अपने पैरों के निशान के साथ उसको मिलाकर देखा, लेकिन वो मेरे पैरों का निशान नहीं था, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से उस बीच के उस एरिया में, उस जगह पर मैं गया ही नहीं। जब मैं गया ही नहीं तो मेरे पैरों के निशान वहां पर कैसे हो सकते, नहीं हो सकते।
दूसरी बात, सेकेंडली एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन फुट। अब क्या हुआ? पहली बात तो उसने बोला कि जब मैं वहां गया, पहली बात तो ये है कि मैं उस पहली बात तो ये है कि मैं उस देवप्रियो, आपसे बेटा मैं कितनी बार बोलूं कि स्पीकर ऑन म्यूट रखें बच्चे। सो व्हाट आई वाज सेइंग, तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो कह रहा है कि मैंने इमेजिनेशन किया, सॉरी बच्चे, मैंने देखा कि ये पैरों के निशान मेरे पैरों के निशान तो नहीं है, क्योंकि दो बात हुई है। एक तो मैं उस एरिया में काफी टाइम से, काफी लंबे टाइम से मैं गया ही नहीं, और उस बीच के एरिया में जब मैं गया ही नहीं तो मेरे पैरों के निशान कैसे हो गए। दूसरी बात, जब मैंने उस फुट के ऊपर अपने पैर को रख के देखा तो वो फुट का निशान मेरे पैर से बड़ा था, तो पक्का ये मेरे पैर का निशान तो नहीं। तो दो बात हो गई, एक तो वो उस एरिया में गया ही नहीं, जब गया ही नहीं तो फुट का मार्क उसका हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात, उस फुट का मार्क उसके पैर से बड़ा था, तो और भी क्लियर हो गया ये फुट का मार्क उसका तो नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये फुट मार्क उसका नहीं। तो रॉबिन्सन क्रूसो आप फिर कंफ्यूज हो गया। माई फियर रिटर्न। अब वो क्या हो गया, दोबारा जितना बेचारा बोल्ड हुआ था कोशिश करके, वो दोबारा डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, वो फिर अपनी घर की तरफ भागने लगा, और वो सोचने लगा भैया अपने घर में ही बैठो, इससे बेटर है कि कोई आपका पीछा कर रहा हो, तो इससे बेटर है कि अपने घर में ही वो वापस चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और वो ये बिलीव करने लगा कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई और भी आया था या आया है, या कोई यहाँ पर पक्का कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और आइलैंड पर अब लोग रहने लगे हैं, या पक्का मेरे अलावा वहां पर कोई और भी रहता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रू, जहां पर बिफोर आई विल समराइज दिस स्टोरी। उदीप, सॉरी मैम टुडे आई एम लेट। बेटा इट्स ओके, इफ यू आर लेट तो अब सेशन में एंड में आने का कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा जो मिस कर चुके हैं सेशन को। सेशन 9:30 पे शुरू होता है, मैक्सिमम 9:35 तक आप लोग आ जाइए। उसके बाद आप लोग आएंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ जाती है, फिर आप मुझे बोलते हैं मैम पीछे का रिपीट कीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल बच्चे। तो अब जिन बच्चों ने मिस कर दिया वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, और मैं स्टोरी को एक बार फिर से समराइज कर रही हूँ। जो बच्चा अनम्यूट कर रहा है स्पीकर, प्लीज अपना म्यूट रखे, बच्चे म्यूट रखे स्पीकर। चलिए मैं एक स्टोरी को एक बार फिर से बता देती हूँ। जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसे एक पैरों के निशान दिखे। रॉबिन्सन क्रूसो 28 साल तक एक आइलैंड पे रहा। उसका जो शिप था वो टूट गया। उसने एक बोट बनाई, लेकिन समुद्र में बोट नहीं जा सकती, तो वो 28 साल तक उसी पे रहा। अब वो उस आइलैंड पे रहा है, ना उसके पास पहनने को कपड़े हैं, ना ही उसके पास खाना है, ना ही उसके पास कोई बार बार है जिससे वो अपने बाल कटवा पाए, तो इसलिए वो लीव्स का यूज कर रहा है टू वियर टू कवर हिज बॉडी। इसीलिए वो आसपास जो नारियल के पेड़ हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फल है, कुछ सब्जियां, उन्हीं को तोड़ तोड़ कर वो बैम्बू शूट्स वगैरह को खा रहा है और अपना जीवन चला रहा है। अब बार बार नहीं है तो उसके बाल भी बहुत लंबे हो गए हैं, उसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, वो लीव्स का यूज कर रहा है, तो समहाउ वो 28 साल तक ऐसी जगह पे सरवाइव कर पाया। लेकिन उसने देखा कि कुछ दिनों बाद वहां पर एक फुटमार्क दिखा उसे। अब वो सोचने लगा ये फुटमार्क किसका है। वो डरते डरते अपने घर पर पहुंच गया और गुफा के अंदर 2-3 दिन बंद रहा। 2-3 दिन बंद रहने के बाद उसने कोशिश की कि मैं मतलब बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि ये फुटमार्क था किसका। तो फुटमार्क का उसने ऑब्जर्व किया कि अ, थोड़ा कोशिश की अपने आप को कंफर्टेबल करने की, कि चलो मैं डर को साइड में रख के, थोड़ा डरा हुआ वो अब भी है, बट वो कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टिगेट करूँ किसका है। वो एग्जामिन करता है, जो तट के किनारे पर समुद्र के किनारे पर वो जाता है, वो देखता है, वो उस चीज को एग्जामिन करता है उस फुटमार्क को, और वो खुद रियलाइज करता है कि ये पैरों के निशान मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरे पैरों से बड़ा है। दूसरी बात, मैं उस एरिया में, उस बीच के एरिया में काफी टाइम से गया ही नहीं, तो मेरे पैरों का निशान नहीं हो सकता।
और वो इमेजिनेशन कर रहा है कि कहीं वो जो तट के किनारे पर कोई आदमी आया होगा तो वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। तो ये सब उसके दिमाग की सिर्फ इमेजिनेशन है, वो बहुत डरा हुआ है। जब वो देखता है कि इसका पैरों का निशान पक्का मेरे पैर से बड़ा है, तो उसे इसका डर आ जाता है, वो घर की तरफ भागता है फिर से। और वो सोचता है कि अपने घर में बैठे रहो, ज्यादा बेटर है। तो उसे लगता है कि अब यहाँ पर लोग बसना शुरू हो गए, लोग रहना शुरू हो गए हैं, या पक्का कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा स्टोरी समझने में। तनया परवीन, यूट्यूब पे आपका नाम क्या है? मेरा मीनाक्षी चौहान के नाम से बच्चे चैनल होगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविज? सेविज मीन बच्चे जंगली होता है, कोई बहुत ज्यादा क्रूअल होता है, निर्दयी होता है। जैसे कोई वाइल्ड एनिमल होता है ना, बहुत ज्यादा क्रूअल होता है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, दे आर सेविज एनिमल्स, जो बहुत ही जंगली होते हैं, उनको कहते हैं सेविजेस। मैम आपने फर्स्ट में जो ग्रामर कराया था वो क्या आप स्कूल खुलने के बाद चेक करेंगे क्या? असलम बेटा, काम चेक करने की टेंशन मत लो, मैं सब चेक करूंगी। स्कूल खुलेंगे, सारा काम हमें ही चेक करना है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर दूंगी जब भी स्कूल खुलेंगे। ठीक है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेट? प्रदीप्ता, इन्वेस्टिगेट मीन्स कोई चीज खोजना, किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच पड़ताल करना। तमन्ना मैम मैंने आपका नाम यूट्यूब में सर्च किया लेकिन मिला नहीं। बेटा मैं जो भी वीडियो भेजती हूँ वो यूट्यूब पे ही खुलेगी, उसी के नीचे सब्सक्राइब का चैनल का नाम आएगा, तो आप कर लीजिए, फिर भी मैं आपको दोबारा आज भेज दूंगी। मैम आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, मैम मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, आयुष वैद्य। थैंक यू बेटा, देखते हो, थैंक यू। नीलाद्री, जासूसी करना, हाँ जासूसी करना, किसकी जासूसी करनी है नीलाद्री? शायद किसी का मीनिंग बता रहे हैं आप। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्डर? बोल्डर मीन्स करेजियस, साहसी, ब्रेव। एक्ट मीनिंग ऑफ बोल्डर इज ब्रेव। जो ब्रेव लोग होते हैं, साहसी होते हैं, जो डरपोक नहीं होते। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? बच्चे फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, अफ्रेड हो जाना, स्कैर्ड हो जाना, फियरफुल हो जाना, डर जाना, एग्जैक्टली मीनिंग। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइदर? नाइदर मतलब ये दो वर्ड होते हैं, नाइदर नॉट, ना तो ये ना वो। नाइदर मीन्स ना ही, नहीं का तरह यूज होता है ये वर्ड। अगर मैं बोलूं आपको चॉकलेट और आइसक्रीम में से क्या खाना है, तो आप बोलेंगे नाइदर, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं खाना, नहीं होता है, नाइदर मीन्स नहीं। ओके, मेक माय लास्ट स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब मीनिंग पूछ रहे बेटा? स्कैर्ड मीन्स डर जाना, फियरफुल। आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, ओके प्रशांत देविस्मिता, टू सर्च और चेक केयरफुली। आर यू टेलिंग मी द मीनिंग ऑफ सम वर्ड? ओके, if you have any query just tell me, we have 10 minutes more, just tell me if you have any query. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोंगसाइड? अलोंगसाइड मीन्स उसके साथ साथ, जैसे रिवर होती है, रिवर के अलोंग साइड, मतलब उस किनारे के साथ साथ मैं उस रिवर को पार करता रहा, या रिवर की साइड में जाता रहा, उसके साथ साथ चलता रहा, या कोई बाउंड्री थी उसके अलोंग साइड चलता रहा, उसके साथ साथ चलता रहा। ओके, काफी बच्चे पूछ रहे हैं। विनीत, मैम सब्सक्राइब करने से क्या होता है? सब्सक्राइब करने से ये होता है बेटा, जो भी वीडियो का लिंक मैं तुम्हें भेजूंगी वो आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है, तो आप वो देख सकते हैं। मैम आई हैव ऑल्सो सब्सक्राइब योर चैनल, आई ऑलवेज सीज योर वीडियो। ओके थैंक यू प्रदीप्ता। आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल मयंक, आई हैव ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेबिटेड? इनहेबिटेड मीन्स बस जाना, किसी जगह पर रहना, कोई चीज ऑक्युपाई कर लेना। ऑक्युपाई मीन्स जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम कैला शहर में रहते हैं, तो वी आर इनहेबिटेड एट द प्लेस ऑफ कैला शहर। तो इनहेबिटेड मतलब वहां जहां पर लोगों का निवास होता है, लोग रहते हैं, उस जगह को कहते हैं इनहेबिटेड। पहले की जगह, पहले के टाइम पे जो आइलैंड पे बहुत कम लोग रहते थे, तो वहां पर लोगों का इनहेबिटेड नहीं था, मतलब लोगों का रहने वाली स्थान नहीं था। तीर्थंकर, आपको क्लास लेनी है बेटा, यू आर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, सो डोंट प्रेजेंट द स्क्रीन।
I have also subscribe your channel by the link. Okay, ये तमन्ना मैम, what is the meaning of inhabited? बेटा आप बता चुकी हो what are the meaning of, what is the meaning of mainland? mainland मतलब बच्चे जो पहले के पुराने लोग जिस जगह पर रहते थे, बिल्कुल पुराने लोग, आदिवासी लोग जो फल तोड़ के खाते थे, अपना जीवन निकालते थे, उस जगह को बोलते हैं मेनलैंड। मेन मतलब इंपॉर्टेंट, प्रमुख जगह, उसको बोलते हैं मेनलैंड। Ma'am, I have subscribed channel and like your video. Okay, Ria, thank you, ma'am. I have subscribed your channel. रून मीनिंग, रून मीन्स बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, खराब कर देना, तोड़ देना। तो रून का मतलब होता है उस चीज को बर्बाद एकदम कर देना। जैसे कोई टॉय है, उसको तोड़ देना, तो वो रून हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, खेलने लायक नहीं रहा। या कुछ एक पेज को मैंने फाड़ दिया, टीयर कर दिया, अब वो लिखने लायक नहीं रहा, वो रुन हो चुका है, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, टीयर हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रुन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडर? वंडर मीन्स बिना काम के कई बड़े बॉयज होते हैं ना जो बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। स्कूल में भी जो क्लास चल रही होती है और क्लास से बाहर निकल कर वॉशरूम के बहाने इधर उधर वंडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कॉरिडोर में राउंड मारते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना हमारी क्लास के, तो उसी को बोलते हैं वंडर, इधर उधर बिना काम के घूमना, इधर उधर घूमना। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडर बता चुकी हूँ स्मिता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? अर्ना फ्राइटेंड मीन्स डरना, फियरफुल, स्कैर्ड और अफ्रेड, डरना। मैम आप इस चैप्टर का न्यू वर्ड कब लिखेंगे? वेरी गुड बच्चे, देवप्रियो सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे आप, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैं न्यू वर्ड्स कब कराती हूँ। अगर आपने सारी क्लास अटेंड की होती तो यू वर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में भी पहले चैप्टर समझाती हूँ, है ना, उसके अगले दिन न्यू वर्ड्स कराती हूँ, उसकी अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, फिर ग्रामर क्वेश्चन कराती हूँ, है ना बेटा। तो मैं अब ऑनलाइन क्लास में भी यही कर रही हूँ, पहले मैं चैप्टर रीडिंग के लिए देती हूँ, फिर मैं चैप्टर समझाती हूँ, फिर मैं न्यू वर्ड्स करवाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर, देन ग्रामर क्वेश्चन। ओके देखो प्रियो, तो टेंशन मत लो, न्यू वर्ड्स मैं करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। मैम आपने माई शेडो का टेस्ट नहीं लिया? प्लीज प्लीज टेस्ट बेटा, मैं मंथ के एंड में 3 चैप्टर इस मंथ कराएंगे हम। शेडो कर चुके हैं, रॉबिन्सन क्रूसो करेंगे, इसके बाद क्राइम पोएम है, उस चैप्टर तीनों का मैं एक मंथ में एक टेस्ट लूंगी। हर चैप्टर का इंडिविजुअल नहीं लेती बेटा मैं, मंथ एंड में जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एलएटी होता है, वो मंथ एंड में जितने भी चैप्टर कराए होते हैं उनका होता है, पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं होता कभी भी बेटा। ओके शयन, सेवेजेस मीन्स बच्चे जंगली, कोई भी चीज बहुत होते हैं, जैसे लायन है, उसको किसी पे तरस नहीं आता, उसे भूख लगी है तो उसे खाना है, तो ही इज अ सेवेज एनिमल। वो बहुत ही वाइल्डी और जंगली सा एनिमल है, जिसे किसी का दर्द नहीं फील हो सकता, जिसे किसी का पेन नहीं फील होता, उसे इफ ही इज हंग्री सो ही विल ईट एनी एनिमल। तो ही इज अ सेवेज एनिमल, वो जंगली है, निर्दयी है, ठीक है। मैम आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल एंड लाइक योर चैनल, सी योर वीडियोस। ओके मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवेजेस? नरेश जो भी बचा है मैं बता चुकी हूँ सेवेज का मीनिंग अभी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? अर्नव, ये पुरानी चर्चा रही है। ओके आई हैव सब्सक्राइब योर। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेबिटेड? बता चुकी हूँ इनहेबिटेड का अर्नव मैंने अभी बताया कि बस जाना, किसी जगह पर रहना। तो सेम वर्ड का मीनिंग आप लोग पूछे जा रहे हैं, आई थिंक आप ध्यान से नहीं सुन रहे। इनहेबिटेड मीन्स रहना, किसी जगह पर बस जाना। मैम आपका न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे, देख लेंगे असलम। अगर ज्यादा, शायद इस चैप्टर में ज्यादा न्यू वर्ड्स है तो हम न्यू वर्ड्स एक साथ करेंगे और क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे, मतलब इकट्ठे नहीं करेंगे न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी 4-5 है, तो वो एक क्लास में नहीं हो पाएंगे न्यू वर्ड्स के साथ। तो न्यू वर्ड्स एक बारी में करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर एक बारी में। ओके रिया मैम आपका क्लास परसों होगा क्या? परसों का परसों देखेंगे बेटा, आप कॉस होगा, क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स करेंगे। आई थिंक अब बच्चों के पास कोई क्वेरी नहीं है और वो अननेसेसरी की बातें कर रहे हैं। ओके थैंक यू बच्चे, आप लोगों ने लाइक की वीडियोस और आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। अच्छा मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे सभी क्लास अच्छे से चल रही है आप लोगों की? मैम दिस स्टोरी इज रियल, यस बच्चे रिया, ये रियल की स्टोरी है। कोई व्यक्ति 28 सालों तक एक आइलैंड पे फंस, यस ये रियल की स्टोरी है और इसी स्टोरी का
आधा पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। 9th क्लास में रॉबिन्सन क्रूसो का आधा सॉरी आधा पार्ट आप पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ, वो 28 सालों तक कैसे वहां पर रहा, और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या वो इस डर फुटप्रिंट से उभर पाया या नहीं। इसी मतलब 5th का आप 9th में 4 साल बाद चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है मैम, आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल। अच्छा मुझे बताइए बच्चे, सारी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं? अब मैं जिस बच्चे को बोलूंगी सिर्फ वो अनम्यूट करेगा, सारे बच्चे अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके। दीपिका बेटा आप अपना अनम्यूट करके सिर्फ आप बताएं। अभी मैं एक एक बच्चे से जैसे पूछूंगी नाम लेके तभी अनम्यूट करेंगे, कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। दीपिका मुझे अपना अनम्यूट करके बताएं, आपकी सारी क्लासेस अच्छी चल रही है बेटा? यस मैम, बहुत अच्छी चल रही है। सभी लाइव सेशन ले रहे हैं बेटा? यस मैम। ओके, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, ठीक है, आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपना। ओके तमन्ना बेटा अपना अनम्यूट करें स्पीकर। रिया कह रही है मैम हम पेन से नहीं लिख सकते। नो बेटा, अभी पेन से आपको किसी को नहीं लिखना। तमन्ना आपकी क्लासेस अच्छी चल रही है बेटा सारे सब्जेक्ट्स की? यस मैम, बट सब हिंदी थोड़ी सी मैम, हिंदी में मैम एक चैप्टर पढ़ाती है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ना करा के नेक्स्ट चैप्टर में चली जाती है, और तो कभी आपके कभी तो हाँ कभी बोलो कभी बोलो बेटा। छोड़ भी देती है मैम। चैप्टर छोड़ देती है मैम? चैप्टर कभी कभी कुछ पॉइंट छोड़ के चली जाती है, फिर से आगे की चैप्टर पढ़ाती है, और कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स ना करे नेक्स्ट चैप्टर में चली जाती है। बिना क्वेश्चन आंसर करवा? यस मैम। तो आप लोगों ने मैम से पूछा नहीं, मैम इसके क्वेश्चन आंसर पूछा नहीं आप लोगों ने कि मैम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हमारे, या जो भी रिमाइंड नहीं कराया मैम को, उसका मैम नो भूल मैम, गई है बेटा? ओके, कितने चैप्टर हुए अभी तक आपके? अभी तक तो मैम 11 12 तक हो गया चैप्टर। 12 तक हो गए। ओके, तो बेटा आप अपनी मैम से बात कीजिए इस बारे में, 12 चैप्टर हो गए और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप टीचर से बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? अगर मेरी भी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, है ना, तो ही तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी। अगर आप टीचर को बताएंगे नहीं कि मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए या ये चैप्टर हमें समझ नहीं आया, तो मैम से इस बारे में बात कीजिए, आप खुद ही बताइए मैम को। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्लास में जब हम आते हैं फर्क पड़ता है ना, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है ना। तो मैडम को बताइए कि मैम ये चैप्टर हमें समझ नहीं आया। बेटा स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ। तो आप मैम को बताएंगे सभी कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमें ये चैप्टर की स्टोरी समझ नहीं आई, या कोई चैप्टर में कोई चीज है जो नहीं समझ में आई, और मैडम से बोलेंगे कि मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे छूट गए हैं, शायद मैडम भूल गई हूँ, है ना, हो सकता है बेटा। तो आप उनसे बात करेंगे, ठीक है? और बेटा इस सेशन में कोई प्रॉब्लम हुई किसी बच्चे को तो मुझे बता दीजिए, जिनका मिस हो गया है। और बच्चे टाइम से लॉग इन कीजिए, क्योंकि टाइम से अगर आप आएंगे तो ही आपको स्टोरी समझ में आएगी, बीच में आप शुरू से चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 1 घंटे की क्लास है और हफ्ते में हमें 2 ही क्लास मिली हुई है, तो मुझे सिलेबस भी कवर कराना होता है। जिन्होंने मिस कर दिया वो रिकॉर्डेड वीडियो का मैं लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिए। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। 9 10:30 हो गए, आपकी अगली क्लास भी शुरू होगी, यू नीड अ ब्रेक। मैम योर सेशन वाज रियली गुड, थैंक यू दीपिका। ओके, नाउ सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, बच्चे पढ़ाई अच्छे से कीजिए, पेन का यूज कोई बच्चा नहीं करेगा, अगर आपने पेन का यूज किया मैं क्रॉस करके वापस भेज दूंगी। मैं पेन का, मैंने आपको कभी नहीं कहा, मैंने पिछली क्लास 5th भी पढ़ाई थी, मैंने पेन का यूज अलाउड ही नहीं किया, प्राइमरी में नोबडी विल यूज पेन। और टीचर्स करते हैं आपका यूज करवाने के लिए, परमिशन देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप पेंसिल ही यूज करेंगे। मैम योर सेशन इज वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा समर्पिता। ओके चलो बच्चे, बाय नाउ, टेक केयर, अपने अगले सेशन की तैयारी कीजिए और ब्रेकफास्ट कीजिए और ब्रेक लीजिए, ठीक है, बाय। थैंक यू फॉर दिस लाइव सेशन। बाय बाय मैम, क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। बाय 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 बाय। मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। मैम। बाय मैम।